So the national income is shifted from firms to households in the form of factor payments or factor earnings. So we can say that the lower part of the diagram is the representation of factor market, because here the factors of productions are being traded here. So now we look at the upper part of the figure. When the goods and services are produced by the firms, so now these goods and services are purchased by the household. When the goods and services are purchased by the household, they would make the payments against those goods and services in the form of prices to the firm. So now the national income is shifted from households to the firms. We can say that the upper part of the figure is the representation of the goods market, because here the trade or the exchange of the goods and services are taking place. Now we can say that whatsoever is being produced in an economy is accorded as national income. Or we can also say that the sum of all the expenditures made by the different sectors of the economy is also represents the national income. Further, we can also say that the sum of the earnings of all the factors of production is also represents the national income. So here we have explained that how the national income changes hands. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This lecture is about the determinants of national income. So here we would explain how many determinants of the national income are there and how we can derive them from different concepts of national income. Let's start our lecture. In order to derive the different determinants of the national income, we would look back towards the different concepts of national income, among which the last concept of the national income was the disposable personal income. It is the income that we get by subtracting the direct taxes or the personal taxes from personal income. So now it is the income that is now available for consumption, and a household or a person can divide it into consumption and saving. Equationally, we can write the disposable personal income as disposable personal income is equals to consumption spending plus savings, where consumption is the part of income that is consumed to purchase the goods and services, while saving here represents the part of income not consumed or put aside for different purposes. Here there are different motivations for the saving, among which the most important is for the generation of new resources and new capital that can be accorded as investment. So here from we can determine that there are three different determinants of national income, that is consumption, savings and investment. So in the next lecture we will discuss these determinants of national income one by one in detail. Assalamu alaikum viewers. This lecture is about the first determinant of national income, that is consumption. So here first of all we will define the term consumption, and then after explaining the consumption function we would derive the propensity to consume with the help of table and diagram. And then we will explain the properties or the attributes of consumption function, and in the last of this lecture we will explain the types of consumption. So let's start our lecture. As far as the definition of consumption is concerned, we can define it as it is the amount of money which is devoted to purchase the consumer goods at a given level of income, or we can say that it is the part of income which is spent on goods and services. In order to derive the equation for consumption, we would go back towards the equation for disposable personal income. As we know
know that disposable personal income is the income that is available for spending, and a household or a person can divide it into consumption and saving. As we can see here in the form of equation that disposable personal income is the combination of both consumption and saving. So if we solve this equation for consumption, then here from we can derive the equation for consumption as consumption is equals to disposable personal income less saving. By using this equation, we can define the term consumption as it is the part of income not saved. So after defining here the consumption, now we will move forward and explain that which factors can affect the consumption, meaning that we are talking about consumption function. As consumption is dependent on the level of disposable personal income, or it varies with the level of disposable personal income, so we can write it as consumption is the function of income. But here a question arises, what type of relationship exists between consumption and income? So we can explain it as when disposable personal income increases, consumption increases. When disposable personal income decreases, consumption decreases, meaning that positive or direct relationship exists between consumption and disposable personal income. Or we can also say that consumption is an increasing function of income. So after defining the consumption function, now we will derive the consumption function with the help of table and diagram. The graphical representation of consumption function is accorded as propensity to consume. So propensity to consume is the graphical representation of consumption and income relationship. It is a curve or a graph shows that which level of consumption is attached with what level of income. In order to derive the propensity to consume, we have assumed different values, or we have taken different values for income and consumption, and by locating these values in the graphical area, we obtain the propensity to consume, that is positively sloped curve with a positive intercept. So 2 points or 2 things that we should note here, that propensity to consume or the consumption function has a positive intercept, meaning that when disposable personal income is zero, or when a person has nothing to spend, then consumption is not zero and consumption is always positive. Meaning that here the individual or the persons are making these savings. When disposable personal income increases, consumption increases, but the change in consumption is less than change in income. Here we will explain the attributes or the properties of consumption function. There are 2 properties or the attributes of consumption function, that is average propensity to consume and marginal propensity to consume. So what does the word average and marginal propensity to consume means? So we can define the term average propensity to consume as it is a percentage of consumption expenditure to income at different level of income. The interpretation for the average propensity to consume is that which percentage of income is devoted to consumption, and we can derive it as mathematically average propensity to consume is equals to consumption over disposable personal income, meaning that how much disposable income is devoted for consumption. Next attribute or the property of the consumption function is the marginal propensity to consume, which we can derive from the ratio of change in consumption to the change in disposable personal income. And the interpretation for the marginal propensity to consume is that how much change in disposable personal income brings how much change in consumption, and mathematically
Basically, we can derive it as MPC, or the marginal propensity to consume, is equals to ratio of change in consumption to change in disposable personal income. Now we will derive these concept or these properties with the help of table. In order to derive the properties of consumption function, we have utilized the same values that we have utilized to derive the propensity to consume. So in order to derive the APC, we use the formula consumption over income. So by dividing the entries in the consumption column by the entries in the income column, we have calculated the values for the average propensity to consume. And how we can interpret these results? As we can see here that the first two entries in the APC column is representing that 1.66 and 1.16. These entries representing that person has spending more than that of his income, meaning that he is making these savings here. The next entry is 1 here, 1 representing that 100% income is devoted to consumption. What does the word 0.92 represent? Here 0.92 represents that 92% of income is devoted to consumption. And if we see on the last entry against APC is equal to 0.77. What does it means? It means that 77% of 77% of income is devoted to consumption. In the same way, we have derived the marginal propensity to consume, as marginal propensity to consume is the ratio of change in consumption to change in income. So by solving this, we have derived the values against all entries, that is 0.67. As we have taken the same changes in the income and consumption, so we get the same values against all the entries of income and consumption, that is 0.67. How we can interpret these results? We can say that 100% change in income brings 67% change in consumption. In the last of lecture, we will explain the types of consumption, as the total consumption function is the combination of C bar plus CY, where C bar representing the autonomous consumption and CY representing the induced consumption. Now we will explain them one by one. C bar here is the interpretation of autonomous consumption. What does the word autonomous consumption means? Autonomous consumption is the type of consumption that is independent of the level of disposable personal income, or that does not varies with the level of income. So we can say that here consumption is not a function of income. Whether the disposable personal income is zero, increases or decreases, consumption would remain same or constant. That type of consumption is autonomous consumption. As we can derive it as in the diagram, we can see that consumption C bar line is parallel to the horizontal axis, meaning that C bar, that is the autonomous consumption, remains constant for all the level of disposable personal income. Whether the income is zero, increases or decreases, this type of consumption remains constant. So next we will move towards the induced consumption. Induced consumption is the type of consumption that is dependent on the level of disposable personal income, or that varies with the level of disposable personal income. So we can write it as consumption here is the function of income. Here when income is zero, consumption is zero. When income increases, consumption increases. When income decreases, consumption decreases. That type of consumption is induced consumption, and we have derived this induced consumption in this diagram. As we can see here that the intercept for the induced consumption is zero, meaning that when income is zero, induced consumption is also zero. When income increases, induced consumption increases because it has a positive slope curve.
What you need, delivered with PandaMart. Rahim. Assalamu alaikum viewers. This lecture is about the second determinant of national income, that is savings. So here first of all we will define the term saving and then we will explain which factors can affect the creation of saving. Then we will proceed further by explaining and deriving the saving function with the help of table and diagram. Then we will explain the properties or the concepts of saving function. After the derivation of the properties of saving function, we will establish the link between saving and consumption function. And in the last of this lecture, we will explain the types or the kinds of savings. So let's start our lecture. As far as the definition of saving is concerned, we can define it as it is the part of disposable personal income which is not spent to purchase the goods and services. Or we can say that income remained after consumption is called saving. In order to derive the equation for saving, we would go back towards the equation of disposable personal income, as we know that disposable personal income is the combination of both consumption and savings. So if we solve this equation for savings, then from here we can derive the equation for saving as saving is equal to disposable personal income less consumption. By utilizing this equation, we can define the term saving as it is the part of income not consumed. As far as the creation of saving is concerned, we can say that creation of saving depends upon the following factors: power to save and will to save, where power to save represents the saving of an individual or a community depends upon the power to save, which in turn depends upon average level of income and the distribution of national income, where the average level of income determines the power to save. As we can say that if the per capita income is reasonably high, then there will be more power to save and vice versa. Further, power to save is also depending on the distribution of national income. If the distribution of national income is fairer, then there will be more power to save and vice versa. As the total amount of saving is also depends upon the will to save, meaning that why people wants to save money. So there could be different consideration for which people wants to save money, among which first is the personal consideration. Here people wants to save in order to provide against old age and unforeseen emergencies. People also concerned with their families, so they want to save to make the provision for education, marriage and to start the business for their children. Next is the business consideration, meaning that people wish to save a large sum to start business or to expand the existing business. People also save for social consideration, where people wants to save for prestige, power and respect in their social lives, because wealth is a symbol of power. People also want to save for the national consideration, meaning that some people also desire to save to provide the funds to their country in order to stimulate the economic development of the country. Here we are going to check the dependency of saving, or in another way we can say that we are interested to check that which factors can affect the saving, meaning that we are talking about saving function. As we can say that saving is dependent on the level of disposable personal income, or it varies with the level of disposable personal income. So in the form of equation, we can write it as saving is the function of disposable personal income. But a question arises here that what type of relationship exists between saving and disposable personal income?
As we can observe that when disposable personal income increases, saving increases. When disposable personal income decreases, saving decreases, meaning that positive or direct relationship exists between saving and disposable personal income. Or we can also say that saving is an increasing function of disposable personal income. So after defining the saving function, we will proceed further and derive the saving function with the help of table and diagram. As we know that the graphical representation of saving function is accorded as propensity to save. So propensity to save is a graph or a curve that explain which level of saving is attached with what level of income. So in order to derive the propensity to save, we have utilized the same values for disposable personal income and consumption that we have taken in the last lecture of consumption function. As we know that saving is equal to disposable personal income less consumption. So in order to derive the saving, we should subtract the values of consumption from the corresponding values of the disposable personal income. And by locating these values of saving and disposable personal income into the graphical area, we get the propensity to save curve that have positively sloped curve with negative intercept. 3 points we should note here that saving function has negative intercept, meaning that when disposable personal income is zero or when individuals have nothing to spend, then they are making this savings. So at zero disposable personal income, savings would always be negative. The second thing that we should note here is when all the disposable personal income is devoted to consumption, then here savings become zero and the saving function would cut the horizontal axis at that disposable personal income. As in our example, this type of relationship exists at the disposable personal income of 90. The third thing that we should observe here is that when disposable personal income increases, saving increases. Here we will explain the properties of saving function. So there are two properties of saving function, that is average propensity to save and marginal propensity to save. Now we will explain them one by one. Average propensity to save is the percentage of saving to disposable personal income at different level of income. Mathematically, we can say that it is the ratio of savings to the disposable personal income. We can interpret the results of average propensity to save as it showing that which percentage of income is devoted to savings. Next concept of the saving function is the marginal propensity to save, meaning that marginal propensity to save is the ratio of change in saving to the change in disposable personal income. Mathematically, we can write it as MPS is equals to change in saving dividing by change in disposable personal income. Here a question arises how we can interpret the results of marginal propensity to save. We can say that marginal propensity to save shows that how much change in income brings how much change in savings. Now we will derive these concepts with the help of table. In order to derive the concepts of saving function, we have utilized the same values for disposable personal income and saving that we have taken to derive the propensity to save. As we know that average propensity to save is equal to the ratio of saving to disposable personal income. So by dividing the values of saving to the values of disposable personal income, we obtain the values in the average propensity to save column, where we can see that first two entries are minus 0.66 and minus 0.16, meaning that at the disposable personal income of 0 and 30, people are making this savings.
Zero value of average propensity to save, representing that at the level of disposable personal income of 90, 0% disposable personal income is devoted to savings, and 0.08 representing that 8% of income is devoted to savings. The last value in the average propensity to save column is 0.23, which representing that at the level of disposable personal income of 300, 23% income is devoted to savings. In the same way, by utilizing the formula of marginal propensity to save, that is the ratio of change in saving to the change in disposable personal income, we obtain the values in the marginal propensity to save column, where we can see that all the values are same because we have taken the same difference in disposable personal income and consumption. We can interpret these results as the value of 0.33 representing that 100% change in disposable personal income brings 33% change in savings. After deriving the concepts of saving, here we will establish the link between concepts of saving and concepts of consumption. The yardstick that we use here to derive the link is the equation for disposable personal income. So here, first we establish the link between average propensity to save and average propensity to consume. And then we will derive the relationship between marginal propensity to consume and marginal propensity to save. As disposable personal income is the combination of both consumption and savings. So by dividing the whole equation by y, we get the equation as y over y is equals to c over y plus s over y. As we know that c over y is equal to average propensity to consume, and s over y is equals to average propensity to save. So by putting these terms, we get that 1 is equals to average propensity to consume plus average propensity to save, meaning that the sum of both average propensity to consume and average propensity to save is always equal to 1. Wherefrom we can derive the formula of average propensity to consume in the form of average propensity to save as average propensity to consume is equal to 1 minus average propensity to save. In the same way, we can also derive the formula of average propensity to save in the form of average propensity to consume as average propensity to save is equals to 1 minus average propensity to consume. In the same way, we can derive the relationship between marginal propensity to consume and marginal propensity to save. Again, starting from the equation of disposable personal income and taking the change on both sides, we get the equation delta y is equals to delta c plus delta s. Dividing the whole equation by delta y, we get the next equation, that is delta y over delta y is equals to delta c over delta y plus delta s over delta y, where we know that delta c over delta y is equals to marginal propensity to consume, and delta s over delta y is equals to marginal propensity to save. So by putting these terms, the equation becomes as 1 is equals to marginal propensity to consume plus marginal propensity to save, meaning that the sum of both marginal propensity to consume and marginal propensity to save is always equal to 1. By solving this equation, we can derive the formula of 1 in the form of another as marginal propensity to consume is equals to 1 minus marginal propensity to save, and marginal propensity to save is equal to 1 minus marginal propensity to consume. Now we will utilize these formulas to derive the concepts of average propensity to consume and marginal propensity to consume from the values of average propensity to save and marginal propensity to save.
Here, as the values of both average propensity to save and marginal propensity to save are given in the table, so by using these values, we can derive the values for average propensity to consume and marginal propensity to consume as. We know that average propensity to consume is equals to 1 minus average propensity to save, meaning that in order to fill the column of average propensity to consume, we should subtract the values of average propensity to save from 1. In the same way, we can recover the values of marginal propensity to consume from the values of marginal propensity to save. Here we can compare that the values of average propensity to consume and the marginal propensity to consume are the same as we have derived in the consumption function. In this section, we will explain the types of saving, as the total saving function is equal to minus S bar plus Sy, where S bar represents the autonomous savings and Sy representing the induced saving. Now we will explain them one by one. By autonomous saving, we means that type of saving that are independent from the level of disposable personal income, or that does not varies with the level of disposable personal income. We can write it as, here saving is not a function of income. As in the diagram, we can see that whether the disposable personal income is zero, increases or decreases, saving remains constant. That type of saving is accorded as autonomous saving. While the induced savings are the saving that are dependent on the level of disposable personal income, or that varies with the level of disposable personal income. We can write it as, the saving is a function of disposable personal income. As in the diagram, we can see that when the disposable personal income is zero, savings are zero. When disposable personal income increases, saving increases. When disposable personal income decreases, saving decreases. That type of savings is accorded as induced savings. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This lecture is about the third determinant of national income, that is investment. So here first of all we will define the term investment, and then we will proceed further and explain the types of investment in detail. So let's start our lecture. As far as the definition of investment is concerned, we can define it as an addition to the existing stock of capital, finished goods, goods into the pipeline of production, and inventories over a period of time is called investment. मतलब कि इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक ऑफ कैपिटल का, फिनिश्ड गुड्स का, गुड्स इनटू द पाइपलाइन ऑफ प्रोडक्शन और इन्वेंटरीज के बढ़ने का नाम है. अगर इनमें से कोई भी चीज बढ़ रही हो या ये सारी चीजें बढ़ रही हो तो इस प्रोसेस को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं. तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. स्टॉक ऑफ कैपिटल मीन्स मशीन्स, रॉ मटेरियल, प्लांट्स, रोड्स, पावर हाउसेस एट एक्स्ट्रा. इसी तरह से जो फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स मीन्स कंज्यूमर गुड्स, यानी जिनको फर्दर प्रोसेसिंग या फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस से नहीं गुजारा जा सकता, इन गुड्स को हम क्या कहते हैं, फिनिश्ड गुड्स कहते हैं. अगर कंज्यूमर गुड्स या फिनिश्ड गुड्स भी बढ़ रही हो तो ये भी इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करता है. नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स इनटू द पाइपलाइन ऑफ प्रोडक्शन. ये वो गुड्स हैं जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजार कर अभी फर्दर जो है वो इसको ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, फर्दर जो है वो गुड्स में इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. तो इन गुड्स को हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं. तो अगर ये कैपिटल गुड्स भी बढ़ रही हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है, अगर ये भी बढ़ रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट कर रहा है.
नेक्स्ट और लास्ट जो चीज हमारे पास है वो है इन्वेंट्रीज। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि इन्वेंट्रीज क्या है। तो इन्वेंट्रीज आर द अनसोल्ड गुड्स एंड कमोडिटीज, यानी वो चीजें जो बगैर बिके रह जाती हैं, इन्वेंट्रीज कहलाती हैं। बट हियर अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई वी आर सेइंग दैट अनसोल्ड गुड्स एंड कमोडिटीज एज इन्वेंट्रीज, यानी हम इन इन्वेंट्रीज क्यों कह रहे हैं, अनसोल्ड गुड्स को क्यों इन्वेंट्रीज कहते हैं? तो अनसोल्ड गुड्स को इन्वेंट्रीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्रोड्यूसर है या फर्म या ऑर्गेनाइजर जो है वो इन अनसोल्ड गुड्स के जो है उसको फाइनेंस करने के लिए बैंक से कर्जा ले लेता है। और इकोनॉमिक्स के टर्म में हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर या ऑर्गेनाइजर अपनी इन जो बगैर बिकी चीजें हैं इसको खुद खरीद लेता है बैंक से कर्जा लेकर, इसलिए इन चीजों को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्रीज कहते हैं। तो अगर ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, इनमें से कोई भी चीज बढ़ जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फर्दर वी कैन आल्सो डिफाइन द टर्म इन्वेस्टमेंट एज इट इज द एक्ट ऑफ परचेजिंग दोज गुड्स व्हिच प्रोड्यूस फर्दर गुड्स और व्हिच प्रोड्यूस फर्दर इनकम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसी चीजों को परचेज कर लेना या ऐसी चीजों को खरीद लेना जो आपको फर्दर चीजें प्रोड्यूस करने में या फर्दर जो है वो आपको इनकम जो है प्रोड्यूस करने में, जनरेट करने में हेल्प करें, तो इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। Meaning that investment consists of new machines, new plants, new roads, new powerhouses, purchase of raw materials or shares of some new firms. Now we will explain the types of investment. So here we are going to explain the types of investment. There are 6 types of investment, that is gross investment, net investment, real investment, financial investment, autonomous and induced investment. Now we will explain all of them one by one. So first type of investment is gross investment. Gross investment is the sum of both net investment and replacement of old investment. Here the stock of capital or the productive assets of an economy remains intact or unchanged. यानी gross investment जो है वो new investment और replacement investment का जो है वो sum है, यानी नई investment भी इसमें हम करते हैं और जो पुरानी जो चीज़ें खराब हो चुकी हो सकती हैं, वेयर आउट हो चुका है जो कैपिटल, उसको रिप्लेस भी करते हैं। तो इन दोनों का जो सम है वो क्या कहलाता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। यहाँ पर जो IN है वो नेट इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेट इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को सम करने के बाद हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या है कि विद विच द प्रोडक्टिव एसेट्स और प्रोडक्टिव कैपिटल ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीजेस, यानी इससे प्रोडक्टिव कैपिटल या कैपिटल एसेट्स जो है वो पहले से बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसको इक्वेशनली डिराइव करने के लिए वी कैन डिराइव इट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, सम है नेट इन्वेस्टमेंट और रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का। इफ वी सब्ट्रैक्ट द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देन वी गेट द नेट इन्वेस्टमेंट एज here IN is equal to IG minus replacement of old investment. Next type of investment is real investment. It is a process which has the effect of increasing the productive assets of the economy. यानी इससे भी productive assets जो है वो economy के बढ़ते हैं। ऐसी investment है जिससे stock of capital जो है वो पहले से बढ़ जाता है। Next type of the investment is the financial investment, which does not increase the productive capacity of the economy, meaning that purchasing of some running plant or purchase of some the shares of some already existing firms, meaning that यहाँ पे जो है वो सिर्फ ownership change होती है। आप जो है वो पहले से मौजूद कैपिटल को परचेज कर लेते हो, आपकी तरफ से तो इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन जो कैपिटल है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि हमारे जो है वो इकोनॉमी के अंदर एक इंस्टीट्यूट है
है, एक कॉलेज है, अगर आप उसे गवर्नमेंट कॉलेज को जो है वो बेच देते हैं, उसको प्राइवेटाइज कर देते हैं, जब एक पर्सन उसे परचेज करता है तो इसका मतलब है वो पर्सन तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रही है। लेकिन अगर हम इकोनॉमी की उस एरिया की कैपिटल को काउंट करें तो अब भी वही जो है वो एक ही इंस्टीट्यूट काउंट होगा, वो दो काउंट नहीं होंगे, क्योंकि वो एक ही इंस्टीट्यूट है, बट द ओनरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट इज नाउ चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में ओनरशिप जस्ट चेंज होती है, स्टॉक ऑफ कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज autonomous investment. It is the type of investment that is independent of the level of income. Whatever the level of income is, investment remains constant here. That type of investment is autonomous investment. As we can see in the diagram कि ये जो parallel line है, जो horizontal axis के parallel line है, ये autonomous investment को represent कर रही है कि ये हर level of income के साथ क्या है, constant है, fix है। तो इस जो है वो type को हम क्या कहते हैं, autonomous investment कहते हैं। Next type of the investment is the induced investment, that is dependent or that varies with the level of income. When the level of income is zero, induced investment is zero. When the level of income increases, induced investment increases. When the level of income decreases, induced investment decreases. तो ये जो टाइप है इन्वेस्टमेंट की वो फंक्शनली डिपेंडेंट है, डिपेंड करती है लेवल ऑफ इनकम के साथ। इसलिए यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट की पॉजिटिवली स्लोप लाइन है, बट हैविंग द जीरो इंटरसेप्ट, यानी ये जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो इंटरसेप्ट किस चीज को इंडिकेट करता है कि अगर लेवल ऑफ इनकम जीरो होगा तो इन्वेस्टमेंट भी जीरो होगी। तो यहाँ तक हमने एक्सप्लेन की टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट को डिफाइन किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल एक्सप्लेन दैट व्हिच फैक्टर्स कैन डिटरमिन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This lecture is about the determination of investment. So here we are going to determine the equilibrium level of investment, where we explain that which factors tell the producer or the investor that where it is profitable for them to increase the level of investment and where it is profitable for them to reduce the level of investment and where it is not profitable for them to increase or reduce the level of investment. So let's start our lecture. Here we are going to explain the Keynesian theory of investment. As according to Keynes, aggregate demand is the total expenditure of the economy. यानी अगर हम इकोनॉमी के तमाम सेक्टर्स का एक्सपेंडिचर ऐड कर लें तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन आ जाएगी। Now we are assuming that there are two sector economy. So in the two sector economy, aggregate demand has two components, that is consumption and investment. So the equation for the aggregate demand becomes as Y is equals to C plus I, where C is equals to consumption and I is equals to investment. यहाँ पर जो कंजम्पशन है एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन में वो मोर और लेस स्टेबिलिटी को शो करता है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आती। बट investment is not stable, rather it goes on changing. Such fluctuations in investment greatly affect the economic activities. Now we are going to observe what determines the level of investment. In this connection we start with the concept of decision to invest. As we know that जितनी भी फर्में हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, उनका गोल या ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। जब हम डिसीजन टू इन्वेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर या इन्वेस्टर है वो ये देखना चाहता है कि उसे कितना अमाउंट जो है वो कैपिटल का परचेज करना चाहिए कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि 3 फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिसीजन टू इन्वेस्ट को जो है वो डिटरमिन करने के लिए। दीज 3 फैक्टर्स are expected yield from capital, यानी जो कैपिटल आपने परचेज किया है वो आपको कितनी अर्निंग्स देगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उससे रिलेटेड। तो ये आपकी जो है वो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो डिसीजन टू इन्वेस्ट को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। सेकंड जो चीज़ है आपके पास, या सेकंड जो फैक्टर है वो हमारे पास है सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल, यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो भी डिसीजन टू इन्वेस्ट को अफेक्ट करती है कि आपने कैपिटल परचेज करने के लिए कितना
अमाउंट पे किया है, आपकी कितनी कॉस्ट जो है वो आपने बेयर की है इस कैपिटल को परचेज करने में। एंड लास्ट फैक्टर इज द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करता है, डिसीजन टू इन्वेस्ट को जो है वो अफेक्ट करता है। यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर हमने देखा वो था एक्सपेक्टेड यील्ड फ्रॉम द कैपिटल एसेट्स, यानी जब आप कैपिटल परचेज करके लाते हो तो वो आपको फॉरन से करंट टाइम पीरियड में आपको इनकम जनरेट करके नहीं देता, बल्कि उसकी जो अर्निंग्स है वो इन फ्यूचर आती हैं। हर कैपिटल एसेट की एक लाइफ टाइम होती है और लाइफ टाइम में जो है वो आपको इनकम जनरेट करके देता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो डिटर्मिनेशन की तरफ जाने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ द कैपिटल इन द करंट टाइम पीरियड। तो इसके लिए हम प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटिंग का मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्काउंटिंग को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम डिटर्मिनेशन की तरफ जाएंगे कि कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट की डिटर्मिनेशन कैसे होती है। तो डिस्काउंटिंग क्या है? डिस्काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द future values in the current time period. Why we are going for discounting? डिस्काउंटिंग क्यों की जाती है? देखें, क्योंकि हमने जो कैपिटल परचेज किया है, जब आप कैपिटल खरीद के लाते हो तो उसकी जो प्राइस है वो तो आप लमसम पे कर देते हो, while we are getting back the income in the period of n years gradually, यानी जो उसकी इनकम है वो आपको जो उसकी लाइफ टाइम पीरियड है उसमें ग्रेजुअली आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है जब आप फ्यूचर की तरफ जाएंगे, करंट टाइम पीरियड में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, जो आपने कैपिटल के ऊपर पैसे खर्च किए हैं, तो इसका मतलब है देयर वुड बी fall in the present value of such yields. So we should account for the present value of expected yield and will have to discount for the expected return of the capital asset. अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके पास जो है वो 100 रुपीज है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है कि आपके पास जो भी रिटर्न है, जो इनकम है, उसको आपने डिस्काउंट कर देना है 1 + r रेज टू पावर n से। यहाँ पे जो n है, जो सुपर सब्सक्रिप्ट में मैंने n लिखा हुआ है, ये n जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइफ टाइम ऑफ द कैपिटल को, यानी आप कितने टाइम पीरियड के लिए जो है वो कैपिटल को जो है वो यूज करेंगे या उसकी जितनी लाइफ टाइम है, या आप अगर कहीं इन्वेस्ट करें तो कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ हम अज्यूम करें फॉर सिंप्लिसिटी n = 1 ईयर। तो अब जब 1 साल के लिए हम इसे अज्यूम करें तो ये फार्मूला जो है वो श्रिंक होके हो जाएगा y/1 + r। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने वैल्यूज अज्यूम की हुई हैं वो वैल्यूज यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 100 डिवाइडिंग बाय 1 + 6%। अब इस 6% को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.06 और 1 और 0.06 को ऐड करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाएगी 1.06। सो अब हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 1.06 से, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 106। इसका क्या मतलब है, यानी आपके पास जो इनकम थी आज वो 100 थी और आपने जो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की वो 106 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ future value of 100 is equal to 106, or we can say that in future rupees 100 would be equal to rupees 106। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आज जो हमने खर्च किया उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इन फ्यूचर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के एक्सप्लेन करेंगे। सो देयर आर 2 डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। नाउ वी विल एक्सप्लेन देम one by one, and in the last of this lecture we will combine these 2 factors to determine the equilibrium level of investment. रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन करने से पहले देखें कि हर एक चीज़ की एक स्पेसिफिक प्राइस होती है। आप मार्केट में जो भी चीज़ परचेज करने के लिए जाते हैं उसकी एक मार्केट में स्पेसिफिक प्राइस है, लेकिन जब आपको किसी दूसरे का पैसा इस्तेमाल करना हो तो उसकी क्या प्राइस होगी, या आप जो है किसी से उधार लेते हैं तो उसकी भी कोई प्राइस होगी या नहीं। तो डेफिनेटली द प्राइस ऑफ द मनी इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। के पैसों को इस्तेमाल करते हैं जब हम
हम किसी दूसरे के पैसे ला के इस्तेमाल करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो आप पेमेंट करते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हियर अ क्वेश्चन अराइजेस कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये प्राइस ऑफ मनी कौन पे करता है? सो बोरर पे टू अ लेंडर आफ्टर सम मैच्योरिटी टाइम, यानी उधार लेने वाला उधार देने वाले को जितने टाइम पीरियड के लिए उसने कर्ज लिया है उसके बाद जो है वो पे करता है ये। तो अब हम ये देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट को किस तरह से अफेक्ट करता है, या इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या फंक्शनली रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं और देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमने सैम्पल स्मॉल आई यूज किया है। तो किस तरह का रिलेशनशिप है? स्मॉल आई यहाँ पे क्या है? कॉस्ट ऑफ बोरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी आप कितना कर्जा लेंगे, कितना उधार लेंगे, वो आपका स्मॉल आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये कॉस्ट ऑफ बोरिंग है। अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा होगी तो फिर आप क्या करेंगे, अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगी तो क्या करेंगे। इस फंक्शनल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करने से पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर जो आपका इन्वेस्टर है वो कर्ज लेकर, यानी वो बैंक से लोन लेता है और फिर इन्वेस्ट करता है, तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो उसको कॉस्ट की तरह से अफेक्ट करेगी। अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा होगी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई होगा, तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग हाई होने की वजह से बोरर क्या करेगा, कम बोरो करेगा मनी को और कम इन्वेस्ट करेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा बोरो करेगा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। मीनिंग दैट नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम। Here we have located the investment on the horizontal axis and the rate of interest on the vertical axis. यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमने डेराइव किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिवली स्लोप कर्व है। इसकी जो मूवमेंट है फ्रॉम लेफ्ट वर्ड टू राइट वर्ड है, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूव कर रहा है। इस कर्व की मूवमेंट ये शो कर रही है कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगी। ये हमारे पास है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे। सिंपली वी कैन से दैट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट, यानी फ्यूचर प्रॉफिट से रिलेटेड जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उन्हें हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। और इन द केन्सियन वर्ड वी कैन डिफाइन इट एज इट इज अ डिस्काउंट रेट which would make the present value of the series of annuities given by the returns expected from the capital assets during its lifetime just equal to its supply price. So इस definition को समझने से पहले हम ये जो terms हैं इनको समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमने कहा कि MEC is a discount rate। अब जब discount rate है तो discount rate, अभी मैंने आपको पहले discounting जो है पिछली slides में पढ़ाई, तो discount rate है। MEC क्या करता है, डिस्काउंट करता है फ्यूचर वैल्यू को आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। और किस तरह से करता है, किस तरह से ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ एनुइटीज, यहाँ पे जो वर्ड एनुइटीज है वो एनुअल रिटर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीरीज हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक कैपिटल जो है उसकी एक स्पेसिफिक लाइफ टाइम पीरियड है, एंड टाइम पीरियड है, जो कि 10 भी हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो वो सीरीज ऑफ एनुइटीज है कि हर साल एनुअली बेसिस पे उसने आपको कुछ ना कुछ रिटर्न जो है वो जनरेट करके देना है। तो वो रिटर्न जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसको आपने डिस्काउंट रेट जो है MEC क्या करता है, उसको डिस्काउंट करता है उन सीरीज ऑफ एनुइटीज को जो कैपिटल से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसकी लाइफ टाइम में, उसको क्या करता है, उसको डिस्काउंट करता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को बराबर कर देता है उसकी सप्लाई प्राइस को, जो आपने आज करंट टाइम पीरियड में खर्च किया है उसके बराबर कर देता है। तो इसको इक्वेशनली फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, सप्लाई प्राइस ऑफ द कैपिटल इज इक्वल्स टू R1, वेयर R1 जो है वो इसका फर्स्ट एनुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके हम डिस्काउंटिंग कर रहे हैं इसको 1 प्लस R से। यहाँ पर जो R है स्मॉल r वो MEC को रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्लस R2 ओवर 1 प्लस R रेज टू पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन RN ओवर 1 प्लस R रेज टू पावर N।
यानी एंड टाइम पीरियड तक, जितना लाइफ टाइम पीरियड है उस तक हम क्या करेंगे, इसके सारे एनुअली जो रिटर्न्स हैं उसको डिस्काउंट करके ऐड कर लेंगे। तो एमईसी की जो ब्यूटी है वो क्या है कि इन सारी सीरीज ऑफ एनुइटीज को वो क्या कर देगा, बराबर कर देगा इसकी सप्लाई प्राइस को। अब हम इसको देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट के साथ इसका कैसा रिलेशनशिप है। तो एमईसी इज डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप exists between investment and MEC? We can say that when investment is high, then MEC would be low. यानी ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टर मौजूद हो, जहाँ पे बहुत क्राउड है बिजनेस का, वहां पर प्रॉफिट का मार्जिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वहां पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कम होता है। जहाँ पे इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन कम होते हैं जिस बिजनेस में, वहां पर प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है एमईसी और इन्वेस्टमेंट के दरमियान। अब हम क्या करेंगे, इससे टेबल और डायग्राम से जो है वो एमईसी स्केड्यूल को डिराइव करेंगे। एमईसी स्केड्यूल को डिराइव करने के लिए हमने कुछ वैल्यूज जो है वो इन्वेस्टमेंट और एमईसी के लिए एज्यूम कर ली। इनका फंक्शनली रिलेशनशिप देखते हुए कि जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी वैसे वैसे एमईसी की वैल्यू फॉल करेगी। और बाय लोकेटिंग दीज वैल्यूज इनटू द ग्राफिकल एरिया वी ऑब्टेन और कंस्ट्रक्ट द एमईसी स्केड्यूल दैट इज नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। ये इन सारी वैल्यूज को जो है वो हर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो एमईसी की स्पेसिफिक वैल्यू थी उसको यहाँ पे ज्वाइन करके हमने जो है वो नेगेटिवली स्लोप कर्व जो है वो एमईसी स्केड्यूल डिराइव कर लिया है, जो ये शो कर रहा है कि एमईसी और इन्वेस्टमेंट के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। Here we will explain that what are the reasons of falling MEC or why MEC fall with increase in investment. So here there are two reasons, one from the demand side and second from the supply side. Demand side से factors जो affect करते हैं MEC को वो क्या है कि जब जिस business में investment आप करने जाते हो, जिसमें investment कर देते हो, बढ़ा देते हो investment को, तो वहाँ पे जो आप raw material use कर रहे हैं, जो आपके business में as a raw मटेरियल यूज हो रहा है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी सप्लाई प्राइस भी बढ़ जाएगी। जब सप्लाई प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई प्राइस इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बढ़ने की वजह से प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो एमईसी जो है वो भी फॉल करेगा। सप्लाई साइड से जो फैक्टर इसे अफेक्ट करते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो सप्लाई ऑफ द गुड्स जो है वो बढ़ जाती है। यानी जिस बिजनेस में आप जाते हो, जिस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हो, तो वो जो चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस ऑफ दैट कमोडिटीज वुड फॉल। तो इसकी कमोडिटीज की प्राइसेस कम होने की वजह से जो रेवेन्यूज हैं वो कम हो जाते हैं। रेवेन्यूज जब कम होते हैं तो प्रॉफिट का मार्जिन कम हो जाता है। प्रॉफिट कम होने की वजह से एमईसी की वैल्यू भी फॉल करती है। ये वो दो रीजंस थे जिनकी वजह से एमईसी जो है वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के साथ साथ फॉल करती है। अब हम बताएंगे यहाँ पर कि इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट और एमईसी कंबाइन होकर इन्वेस्टमेंट को डिटरमिन करते हैं। सो अभी हमने जो है वो प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसा फंक्शन है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। और हमने ये भी बताया कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ एमईसी की वैल्यू जो है वो फॉल करती है। सो वी कैन एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ 3 different possibilities as if MEC is greater than rate of interest, then it is profitable for the firm or the investor to increase the level of investment because here expected return from the capital asset is greater than the cost of borrowing. Next possibility is that when MEC becomes equal to rate of interest, then it is profitable to stop the level of investment here because it is not profitable to increase or decrease the level of investment here. When the situation becomes as when MEC falls short of rate of interest or when the expected return from the capital falls short of the cost of borrowing, then it is profitable for the firm or investor to reduce the level of investment. Now we will explain this with the help of diagram.
यहाँ पे हमने जो है वो MAC स्केड्यूल वही यूज़ किया हुआ है जो आपने अभी पहले डेराइव किया था। अब आपने जस्ट यहाँ पे सिर्फ एक जो है वो लाइन यहाँ पे हमने डेराइव कर लेनी है। वो किसकी लाइन है? वो ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट की लाइन है, दैट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 15%। तो इस 15% पर या 15% पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की हमने लाइन डेराइव की हुई है, ये लाइन, इन दोनों लाइंस को हम कंपेयर करेंगे और डिसीजन टू इन्वेस्ट जो है वो यहाँ से चेक करेंगे। देखिए इस वाले एरिया में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर MAC जो है लाइन या MAC स्केड्यूल ऊपर है किससे? रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइन से। ये एरिया शो कर रहा है कि MAC हेयर इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो हेयर it is profitable for the investor or the businessman to increase the level of investment। जब वो level of investment को increase करता है, MAC की वैल्यू फर्दर फॉल करती जाती है और फॉल करते करते हम यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है? 25 है और यहाँ पर बोथ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड MAC becomes equal to each other। सो ये लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, ना यहाँ पे रिड्यूस करना इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल है, ना यहाँ पर इंक्रीज करना प्रॉफिटेबल है। तो ये वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर इन्वेस्टर को फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए, उसे स्टॉप कर देना चाहिए यहाँ पर। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डिटरमिन हो जाती है। इसके बाद की अगर हम सिचुएशन देखें तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइन जो है वो ऊपर है MAC स्केड्यूल से। तो ये प्रोपोर्शन या ये जो एरिया है वो ये शो कर रहा है कि हेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन MAC, सो हेयर इट इज प्रॉफिटेबल फॉर द फर्म और द इन्वेस्टर टू रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This lecture is about the determination of income and employment. So here we are going to answer the question that how we can determine the equilibrium level of income and employment, or what are the approaches or method that we can adopt to measure the equilibrium level of income and employment. So let's start our lecture. Division of the theories of income and employment is dependent on the different perspective of the different economists, meaning that different school of thoughts के point of view regarding the determination of income and employment एक दूसरे से different है। So depending on these differences, we can divide the theories of income and employment into two different categories as the classical theory of income and employment and the Keynesian theory of income and employment, where the classical school of thoughts are headed by Adam Smith and the Keynesian school of thoughts are headed by John Maynard Keynes। अब हम इस लेक्चर में क्लासिकल के पॉइंट ऑफ व्यू को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे दैट हाउ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमिन्ड। Then in the next lecture we will explain that how according to Keynes equilibrium level of output and employment is determined. In order to open up the classical view regarding the determination of income and employment, we can say that classical model has two pillars। और हम कह सकते हैं कि classical model की two basic theories है, जिनमें से first theory is the Say's law of market, where the Say's law of market is concerned with the real sector of the economy। real sector of the economy किस चीज को represent करता है? real sector of the economy ये represent कर रहा है कि Say's law जो है वो market का वो real variable जैसा कि output, employment और production के दरमियान relationship को establish करता है, while the second theory is related with the quantity theory of money and simply we can say it as QTM, where the QTM is concerned with the monetary sector of the economy। यानी QTM जो है वो monetary variables जैसे कि prices, money supply के दरमियान relationship को establish करता है। अब हम इन दोनों थ्योरीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, बट बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन द थ्योरीज इन डिटेल, फर्स्ट वी विल एक्सप्लेन द assumptions of the classical model। According to classical economists, there is always full employment in the economy, meaning that every job seekers gets the job in accordance with his capabilities and there is never involuntary unemployment।
Moreover, the resources of the economy are fully utilized. Further, the classical believed in laissez-faire economy, meaning that there should be no government intervention in economic affairs. इसका मतलब ये हुआ कि क्लासिकल जो है वो फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी पर बिलीव करते हैं. They also advocate closed economy, where there is no foreign trade, meaning that foreign sector की economic transaction में कोई involvement नहीं है. Further, they assume that the short run model, as we know that short run is a time period during which some factors are fixed and some are variable. तो हम क्लासिकल के प्रोडक्शन फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि आउटपुट हेयर इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेबर एंड फिक्स्ड फैक्टर कैपिटल. Further, the classical assume that money supply is fixed. What is the meaning of money supply? Money supply here represents the currency in circulation or the quantity of money in an economy. Moreover, they were of the view that labor is homogeneous factor. मतलब कि लेबर के जितने भी यूनिट्स इकोनॉमी में मौजूद हैं वो एक दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. मीनिंग दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ लेबर आर आइडेंटिकल इन देयर कैपेबिलिटीज. Further, they were of the view that there is perfect competition in all the markets of the economy. Accordingly, the prices, wages, rate of interest, etc. are flexible. Perfect competition जो है यहाँ पे कैसे मार्केट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है? Perfect competition is the market situation or the market structure characterized by the complete absence of rivalry among the individual firms. यानी ये ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स होते हैं और चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करती हैं. यानी चीज़ों की प्राइसेस विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमिन होती हैं. According to classicals, total expenditure in the two sector economy is the composition of consumption and investment, and the total output of the economy is the combination of consumption and savings. They also assume that both saving and investment are the function of rate of interest. जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट के दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ने की वजह से इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है. सो वी कैन से दैट investment is a decreasing function of rate of interest, while saving is an increasing function of rate of interest. Now we will explain the Say's law of market. J.B. Say's was the follower of Adam Smith. He widely diffused the ideas given by Adam Smith. The Say's law is as supply creates its own demand. मतलब कि जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं इकोनॉमी में वो अपनी डिमांड जो है खुद क्रिएट कर लेती हैं, जिसकी वजह से नथिंग वुड रिमेन्स अनसोल्ड एंड देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. दिस इज एक्सप्लेन्ड विद रेफरेंस टू बार्टर सिस्टम एज वेल एज इन मनी इकोनॉमी. जहां बार्टर सिस्टम ऐसा सिस्टम है वेयर द गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद गुड्स एंड देयर इज नो यूज ऑफ मनी इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. जबकि मनी इकोनॉमी में गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद मनी और यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट विद द यूज ऑफ मनी. Now we will see how Say's law works in both types of economies. Here we will explain the working of Say's law in barter economy. As the statement for Say's law is as supply creates its own demand, meaning that whatever is produced in the barter economy is sold out. Hence, nothing remains unsold, and there is no possibility of overproduction and unemployment. यानी बार्टर सिस्टम के अंडर जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं या तो लोग उसे खुद इस्तेमाल कर लेते हैं या दूसरों के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं. इस तरह कुछ भी अनसोल्ड नहीं रहता और ऐसी सिचुएशन में अनएम्प्लॉयमेंट और ओवर
प्रोडक्शन की कोई पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। बार्टर सिस्टम में लोग चीजें या तो अपने लिए प्रोड्यूस करते हैं या दूसरों से एक्सचेंज करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। मीनिंग दैट इन दिस प्रोसेस देयर इज एन एग्रीगेट डिमांड एंड एज वेल एज एग्रीगेट सप्लाई। बट हियर अ क्वेश्चन arises, how price mechanism work under barter system? So we can say that under this mechanism, it is the value of good which clears the market, meaning that if the price of one good is higher than that of another good, then resources will shift from the production of low value good to the production of high value good. In this way, the value of good will fall where the resources are moving and the value of goods will rise where from the resources are coming out. मतलब कि जिस चीज की प्राइस दूसरी चीज के मुकाबले में ज्यादा होती है, उस चीज को प्रोड्यूस करने में प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट का मार्जिन मिलता है, तो प्रोड्यूसर्स अपने रिसोर्सेज को कम कीमत वाली चीज से हटाकर ज्यादा कीमत वाली चीज की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि जहां रिसोर्सेज शिफ्ट होते हैं वहां चीज की वैल्यू सप्लाई बढ़ने की वजह से कम होना शुरू हो जाती है, और जिन चीजों की प्रोडक्शन से रिसोर्सेज निकाले थे प्रोड्यूसर्स ने, इन चीजों की वैल्यू सप्लाई कम होने की वजह से बढ़ना शुरू हो जाती है। In this way, the value equalization process starts till the equilibrium value is settled in the market. Thus, according to say, aggregate demand is equal to aggregate supply, meaning that supply in n markets is equal to the demand in n markets. Here a question arises that what is the value of any good in the economy and how we can derive the value of one good in term of another good. So the determination of price will take place through the process of exchange. In this way, the value of the good could be determined on the basis of surplus and scarcity of any good. यानी ऐसी अशिया जिनकी सप्लाई मार्केट में दूसरी चीजों के मुकाबले में ज्यादा होती है, और इन अनदर वे वी कैन से दैट गुड्स हैविंग मोर सरप्लस क्वांटिटी एज कंपेयर टू अनदर गुड, देन इट्स वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ अदर गुड वुड बी लो। जबकि ऐसी चीजें जिनकी मार्केट में डिमांड दूसरी अशिया के मुकाबले में ज्यादा होती है, ऐसी अशिया अपने बदले में बहुत ज्यादा अशिया एक्सचेंज कर सकती हैं। Consequently, in a barter economy, the aggregate demand will be equal to aggregate supply. Classical economists believed that the sales law is equally valid in money economy. यानी जहां पर चीजों का तबादला पैसों के साथ होता है, वहां भी किसी चीज की सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट कर लेती है। This is explained as in the money economy, when person produce the goods and services, they will earn money. Whatsoever is earned by them is spent on the same good they have produced. यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस से जो भी इनकम रिसीव करते हैं वो हमेशा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में डिवाइड हो जाती है, मीनिंग दैट नो पार्ट ऑफ मनी इज होल्डेड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस. In other words, we can say that money in the classical model is just a medium of exchange. It is obvious from this flow chart that the output of the economy is produced by labor, capital, land, and entrepreneur. Against it, they get wages, rent, rate of interest, and profit. यानी जो आउटपुट प्रोड्यूस होती है, अब वो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम बन गई। यहाँ पर जो आउटपुट प्रोड्यूस हुई है वो एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो पेमेंट्स और रिटर्न्स हैं वो एग्रीगेट इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। ए पार्ट ऑफ सच इनकम इज स्पेंट बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन कंजम्पशन एंड अ पार्ट इज सेव्ड. Then through the flexibility of rate of interest, these savings becomes equal to investment.
इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपेंडिचर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर गुड्स पर हुए उनका सम एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करता है. सच एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. इससे ये बात क्लियर हो गई कि इकोनॉमी में जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो सब की सब सोल्ड आउट हो गई. यानी नथिंग वुड रिमेन्स अनसोल्ड, देन इकोनॉमी इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड एट फुल एम्प्लॉयमेंट. Now, before going towards the second model of classical, that is QTM, first we will explain the role of money in classical model. क्लासिकल सिस्टम में मनी सर्व्स जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीनिंग दैट इट इज यूज्ड टू कैरी आउट द डे टू डे ट्रांजैक्शन. इसका मतलब ये हुआ कि क्लासिकल सिस्टम में मनी न्यूट्रल है. Here the question arises, what is the meaning of neutrality of money? It indicates that money cannot influence the variable like income, output and employment. जबकि मॉनेटरी वेरिएबल्स को मनी अफेक्ट कर सकती है. मॉनेटरी वेरिएबल से मुराद जैसे कि प्राइसेस हैं, मॉनेटरी वेजेस हैं, इनको मनी सप्लाई अफेक्ट कर सकती है. Thus, according to classical economists, price level is the function of money supply, where M represents the money supply or quantity of money. For this, they have presented the quantity theory of money. It can be stated as double the money supply, double will be the level of prices. Thus, any change in quantity of money brings a proportional change in price level. इसको हम इक्वेशनल फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज ये कहलाती है MV इज इक्वल्स टू PY. ये इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज जो है रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर M जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज में मनी सप्लाई को या क्वांटिटी ऑफ मनी को, जबकि V यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीनिंग दैट हाउ मैनी टाइम्स अ कॉइन चेंजेस हैंड. P here represents the price level and Y here represents the output in the economy. Now we will prove the statement of QTM with the help of an example. यहाँ हमने अज्यूम किया है कि मनी सप्लाई जो है उसकी वैल्यू 100 है, वेलोसिटी की वैल्यू 3 है और आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी में उसकी वैल्यू 50 है. वी कैन सॉल्व द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज फॉर प्राइस लेवल एज P is equals to MV over Y. Now, by substituting the values for M, V and Y, we can get the prices as equal to 6. अब हम मनी सप्लाई को डबल करके देखते हैं कि प्राइस लेवल में क्या चेंज आएगा. Now, by substituting M is equals to 200, V is equals to 3 and Y is equals to 50 into the price equation, we get the price level that is equal to 12. Here it is proved that by doubling the money supply, price level would be doubled. Now we will explain this with the help of diagram. As MV is equals to PY, this equation of exchange becomes identity or converted into QTM when it is assumed that output and velocity of money are stable in short run. तो यहाँ पर प्राइसेस पैसिव हो जाती हैं, मतलब कि M brings change in प्राइस लेवल. जैसे जैसे M चेंज होगा तो वो प्राइस में भी चेंज लेकर आएगा. फिर Y और V की कॉन्स्टेंसी को एज्यूम करने के बाद मनी सप्लाई में जो भी चेंज आता है वो प्राइस में प्रोपोर्शनल चेंज लेकर आता है. इट इज शोन इन दिस डायग्राम. यहाँ A पॉइंट पर M1 V बार बराबर है P1 Y बार के. दिस मीन्स दैट इफ द लेवल ऑफ आउटपुट इज Y bar and level of price will be P1.
ताकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाए। एक्सपेंडिचर यहाँ पर M1V बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि आउटपुट Y बार पर फिक्स्ड है बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट, तो यहाँ मनी सप्लाई में इजाफा प्राइसेस में बराबर इजाफा लेकर आएगा। जैसे कि M2V बार ने प्राइसेस को बढ़ाकर डबल करके P2 कर दिया, जिसकी वजह से MV कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। जैसे कि इस डायग्राम में ये जो ब्लू लाइन है ये शिफ्ट कर गई है ऊपर की तरफ, जो शो कर रही है कि मनी सप्लाई डबल होने की वजह से प्राइस लेवल भी क्या हो गया है, डबल हो गया है। इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ पर MV जो है वो डिमांड फॉर मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, while PY इज रिप्रेजेंटिंग द सप्लाई ऑफ मनी। Here we will explain that how the QTM is accorded as a classical theory of aggregate demand. Starting from the equation of exchange as MV is equals to PY, if velocity of money is constant, तो ये मनी सप्लाई ही है जो किसी स्पेसिफिक पीरियड में स्पेंडिंग्स को डिटरमिन करती है। As classical says that money is nothing more than a medium of exchange, meaning that no money is held in idle cash holdings. Whenever people gets the money, तो उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो इसे खर्च कर दें। The spending is either for the consumption or for capital goods. इसमें जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है कंज्यूमर की तरफ से वो डायरेक्टली किए जाते हैं, जबकि कैपिटल गुड्स पर एक्सपेंडिचर कंज्यूमर साइड से इनडायरेक्टली किए जाते हैं। तो अब हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे इसे कि कैसे जो है वो कंज्यूमर्स कैपिटल गुड्स को इनडायरेक्टली परचेज करते हैं, यानी कंज्यूमर क्या करते हैं, अपनी इनकम को कंजम्पशन और सेविंग में डिवाइड कर देते हैं। इनमें से जो ये सेविंग्स होती हैं उसको बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं, जहां से प्रोड्यूसर इसे कर्जे की शक्ल में उधार लेकर कैपिटल गुड्स पर खर्च कर देते हैं। द सम ऑफ एक्सपेंडिचर्स मेड बाय द पीपल ऑन कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर मेड बाय द फर्म्स टू परचेज द कैपिटल गुड्स इज गिवन द नेम ऑफ एग्रीगेट डिमांड। Thus the QTM also throws light on aggregate demand of the economy. कि जब भी मनी सप्लाई चेंज होती है देन देयर विल बी अ चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, और ये चेंज बराबर होता है चेंज इन मनी सप्लाई मल्टीप्लाइड बाय द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज के लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म है वो मनी डिमांड और एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करती है, जबकि राइट हैंड साइड टर्म मनी सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रही है। Here we are going to explain the criticism on classical theory of income and employment made by John Maynard Keynes. The criticism levied against classical theory is as possibility of overproduction. सेल्स लॉ ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंगली सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी इकोनॉमी में जो भी कुछ प्रोड्यूस होता है वो सोल्ड आउट हो जाता है। जब कुछ भी अनसोल्ड नहीं रहता देन देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बट द फर्स्ट स्लैप ऑन द माउथ ऑफ सेल्स लॉ वाज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग 1930s ग्रेट डिप्रेशन, when markets were flooded with goods and people are incapacitated to purchase such all. Accordingly, sales law and market economy becomes dubious. केन्स ने इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे की है कि जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिम्यूनरेशन मिलता है उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो सारी की सारी अर्निंग्स उसी चीज़ पर खर्च कर देंगे जो उन्होंने प्रोड्यूस की है, बल्कि वो इन अर्निंग्स का कुछ पार्ट सेव कर लेते हैं, जिसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में कमी होने की वजह से वो चैनलाइज नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन में इकोनॉमी में चीज़ें अनसोल्ड रह जाती हैं,
जब चीज़ें अनसोल्ड रहती हैं तो प्रोड्यूसर्स को लॉसेस फेस करना पड़ते हैं। जब प्रोड्यूसर्स को लॉसेस फेस करना पड़ते हैं तो फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो इससे डिस्करेज हो जाती है। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से इनकम और एम्प्लॉयमेंट में कमी वाक़या हो जाती है। जब इनकम और एम्प्लॉयमेंट कम होती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट में कमी आई है, इसका रीज़न क्या हुआ? डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, कि डिमांड कम होने की वजह से चीज़ें जो हैं वो अनसोल्ड रह गई। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो इकोनॉमी डिफ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सपीरियंस करता है, जैसे कि 1930s के ग्रेट डिप्रेशन में हुआ। Next criticism raised by Keynes was related with the equality of saving and investment. जैसे कि क्लासिकल का मानना था कि ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट है जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी क्रिएट करता है, और ये इक्वालिटी फुल एम्प्लॉयमेंट पर होती है। But Keynes object this proposition. He says that savers and investors are two different classes, जिनके motives और incentives एक दूसरे से different हैं। अगर इकोनॉमिक सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि सेविंग्स हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होंगी। अगर कभी इकोनॉमी में इस तरह की सिचुएशन फेस करे कि सेविंग्स जो है वो एक्सीड कर जाए इन्वेस्टमेंट से, तो इसके नतीजे में कंजम्पशन कम हो जाता है। जब कंजम्पशन कम होगा, एज कंजम्पशन इज द पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड में कमी इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन लेकर आएगी, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को लॉसेस फेस करना पड़ेंगे। रिजल्टेंटली इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस बोथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिफ्लेशन। Next objection pointed out by the Keynes is about the hoarded money. सेल्स लॉ के अकॉर्डिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी अर्न करते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर्कुलेशन में आ जाता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ अनसोल्ड नहीं रहती और इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट और ओवर प्रोडक्शन जैसी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट नहीं होती। बट अकॉर्डिंग टू केन्स, इन सर्टेन केसेस द एक्ट ऑफ होर्डिंग मे बी इकोनॉमिक। जैसे कि लोग जो हैं स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए कैश अपने पास रखना चाहते हैं ताकि वो प्राइसेस ऑफ बॉन्ड्स में फ्लक्चुएशन से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो जो कैश लोग स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए अपने पास रखते हैं, ये कैश सर्कुलेशन में नहीं आता, जिसकी वजह से चीज़ें अनसोल्ड रह जाती हैं, जिसका मतलब है ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमी में क्रीप कर जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन रेज्ड अबाउट द कॉन्स्टेंसी ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी। क्लासिकल के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है। ट्रेडिशन, कस्टम्स और फैशन जो है वो लोगों का कंजर्वेटिवनेस की वजह से वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है, एज मनी इज जस्ट डिमांडेड टू कैरी आउट द डे टू डे ट्रांजैक्शन। लेकिन केन्स ने स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से लोग स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए कुछ जो है कैश अपने पास रखना चाहते हैं। ऐसी डिमांड फॉर मनी की वजह से वेलोसिटी ऑफ मनी कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि डिफरेंट टाइमिंग में स्पेकुलेटर्स की डिमांड फॉर स्पेकुलेटिव पर्पसेस जो है वो डिफरेंट होती है। लोग जो कैश अपने पास स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए रखते हैं, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से एग्रीगेट वेलोसिटी ऑफ मनी कम हो जाती है। इसीलिए क्लासिकल के अकॉर्डिंग मनी डिमांड जो है वो स्टेबल रहती है, जबकि केन्स के अकॉर्डिंग इट इज़ अनस्टेबल। Further, Keynes criticized the classical model on the basis of existence of perfect competition in all markets. जैसा कि क्लासिकल ने एज्यूम किया था कि ये प्राइसेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट और वेजेस की फ्लेक्सिबिलिटी है जो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी को फुल एम्प्लॉयमेंट पर एडजस्ट कर देती है। लेकिन केन्स के अकॉर्डिंग कंजम्पशन और सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा इनकम पर भी डिपेंड करते हैं। जब इनकम इंक्रीज होती है तो सेविंग भी बढ़ जाती हैं। जब सारी की सारी इंक्रीज्ड इनकम खर्च नहीं होती तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, जो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट और ओवर प्रोडक्शन जैसे डिस्टर्बेंसेस को क्रिएट कर देती है। Moreover, Keynes criticized the classical theory on the basis of the existence of full employment.
The capitalism operates under price mechanism and the motive of self interest. हमारी इकोनॉमीज की जो रिकरिंग फीचर है वो ट्रेड साइकिल्स हैं, जो या तो शॉर्टेजेस क्रिएट कर देते हैं गुड्स की या अबेंडेंस क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में गुड्स की। ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम में रिसोर्सेज जो हैं वो मिस एलोकेट किए जाते हैं और इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन होती है। यहाँ पर सोशल और प्राइवेट बेनिफिट्स में डिफरेंस होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आवर इकोनॉमीज विल हार्डली मूव्स टुवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट। Against classicals, Keynes and his followers are of the view that to remove such type of unemployment or for the sake of economic stabilization, state should interfere in economic affairs. वो कहते हैं जैसा कि ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ज़रूरी होते हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, इसी तरह से गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो है इकोनॉमिक अफेयर्स में ज़रूरी है स्टेबलाइजेशन क्रिएट करने के लिए। In the next lecture, we will explain the Keynesian perspective regarding the determination of income and employment. Thanks for watching. Factory price. लोन चाहिए होता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है गारंटर को ढूंढना। ना हर किसी के पास वक्त होता है और ना किसी के पास जरूरत। तो इसी के लिए बेस्ट सोल्यूशन है पैसा यार, जो कि सिंपल और फास्ट है। ना कोई गारंटर, ना कोई पेपर वर्क, सिर्फ CNIC से मिल जाता है आपको अप टू 50,000 लोन, वो भी 2 से 3 महीनों में। रीपेमेंट भी बिल्कुल आसान, 66 to 90 डेज में आप भी पे कर सकते हैं। पैसा यार, सिंपल, सीधा और फास्ट। Quick cash, easy life, download पैसा यार। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today's lecture is about the Keynesian theory of income and employment, where we would explain that how according to Keynes, equilibrium level of income and employment is determined. As in the previous lecture, we have explained the theories of classical school of thoughts regarding the determination of income and employment. In the same line, here we are going to determine the equilibrium level of national income in the Keynesian framework. So let's start our lecture. The classical model of full employment and laissez-faire economy, as we have discussed in the last lecture, got much more importance during the late 19th and in early 20th century. ये फुल एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट फ्री इकोनॉमी की आइडियल सिचुएशन जो क्लासिकल ने प्रेजेंट की थी, कोलैप्स कर गई जब वर्ल्ड ने 1930s में ग्रेट डिप्रेशन को एक्सपीरियंस किया। जब वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया तो ये ना सिर्फ इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन को लेकर आया, बट मैस अनएम्प्लॉयमेंट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड। Then John Maynard Keynes wrote his esteemed book General Theory in 1936. In such book, he not only criticized the classist but also presented his own theory of income and employment. Here, first of all, we will present the salient feature of the Keynesian theory of income and employment. Afterward, we will see the certain extensions of such theory. Salient features of the Keynesian theory of income and employment. केन्स ने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट पेश किया। केन्स के मुताबिक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वहाँ डिटर्मिन होती है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है। यहाँ AD एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि AS एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्दर केन्स ने एक्सप्लेन किया कि ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम जरूरी नहीं है कि हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही ऑपरेट करे, बल्कि ही एक्सप्लेन दैट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट मे बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट, बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। जहां केन्स के मुताबिक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट वो मैक्सिमम आउटपुट है जो इकोनॉमी अपने तमाम नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रोड्यूस कर सकती है। इसका मतलब
मतलब ये हुआ कि अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की इक्वालिटी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर हो तो केन्स के मुताबिक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर ऑपरेट करेगा। अगर कभी इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से एक्सीड कर जाए तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम विल टेक्स प्लेस अबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब कभी फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो तो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ जाती हैं। जब प्राइसेस ऑफ गुड्स बढ़ती हैं तो प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट भी बढ़ जाते हैं। जब प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट बढ़ते हैं तो प्रोड्यूसर्स फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा देते हैं। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की वजह से नेशनल इनकम भी बढ़ जाती है। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट तो वो मैक्सिमम आउटपुट थी जो इकोनॉमी ने अपने तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रोड्यूस की। तो इसका मतलब ये हुआ कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जब भी नेशनल इनकम बढ़ेगी तो ये इजाफा सिर्फ मॉनेटरी टर्म में होगा, जबकि इसकी एक्चुअल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। Thus we can say that this monetary increase in national income represents the inflationary gap in the economy. अगर इसके ऑपोजिट हम देखें कि अगर कभी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑपरेट करेगी। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाए तो एग्रीगेट सप्लाई यानी एक्सेस सप्लाई होने की वजह से चीज़ों की प्राइसेस फॉल करेंगी। जब चीज़ों की प्राइसेस फॉल करेंगी तो प्रोड्यूसर्स को लॉसेस फेस करना पड़ेंगे, जिसकी वजह से फर्दर इन्वेस्टमेंट डिस्करेज करेगी। इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर्स कम कर देंगे। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में भी कमी आ जाएगी। इन दिस सिचुएशन देयर विल बी deflationary gap in the economy. Further, Keynes introduces the concept of effective demand. By effective demand, he means that national income, total expenditure, and the total output of the economy would be equalized at a point. This point is also known as the effective demand point. यानी इफेक्टिव डिमांड ऐसा पॉइंट है जहां पर नेशनल इनकम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाते हैं। केन्स के अकॉर्डिंग अगर किसी कंट्री में इफेक्टिव डिमांड ज़्यादा हो तो वहां नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी। This also means that it is the deficiency of effective demand which is responsible for unemployment in the country, while the excessive effective demand result in inflation in the economy. Further, contrary to the classical utopia of laissez-faire economy, Keynes and his followers advocated for state intervention to remove the inflationary and deflationary gaps. After considering here the salient feature of Keynes theory, first we will present the assumption of the model before going towards the determination of income and employment in Keynesian framework. In order to derive the equilibrium level of national income, it is assumed here that there is a two-sector economy. यानी इकोनॉमी में टू सेक्टर्स मौजूद हैं, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। Accordingly, national income or the expenditure side of national income will be as y is equals to c plus i, जहाँ पर c कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और i जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तेरे ते मैं तो वारी वारी जावां सावां दे विच ना तेरा मैं वसावां मैं जी पुकारा। Keynes and his followers are of the view that consumption is dependent on the level of income. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ जाता है और जैसे जैसे इनकम कम होती है कंजम्पशन भी कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंजम्पशन इनकम का इंक्रीजिंग फंक्शन है।
तो कंजम्पशन फंक्शन को इक्वेशनल फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, कंजम्पशन इज इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वाई, जहां पर सी नॉट एटोनमस कंजम्पशन को और इंटरसेप्ट ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी वाई यहाँ पे इंड्यूस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल सी यहाँ पर एमपीसी या स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि सी नॉट और स्मॉल सी पर क्या क्या कंडीशंस हैं। जो सी नॉट है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी इनकम जीरो भी हो तो कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं होता, यानी ऑटोनमस कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहता है। जबकि स्मॉल सी यहाँ पर एमपीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एमपीसी की वैल्यू पे कंडीशन क्या है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है बट लेस देन वन। लेस देन वन किस चीज़ को शो कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एमपीसी ये शो करता है हाउ मच चेंज इन इनकम ब्रिंग्स हाउ मच चेंज इन कंजम्पशन, यानी इनकम में जो चेंज हो रहा है वो कंजम्पशन में कितना चेंज लेकर आएगा। अगर 100% चेंज हो तो एमपीसी की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को कंडेम किया है कि इसने अज्यूम किया है कि सी की वैल्यू है लेस देन 1। इसको हम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के साथ भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो यहाँ पे C लेस देन 1 ये इंडिकेट कर रहा है कि जब कभी इनकम चेंज होगी तो कंजम्पशन में चेंज आएगा, लेकिन हमेशा चेंज इन कंजम्पशन वुड रिमेन्स लेस देन द चेंज इन इनकम। क्यों कम रहेगा? देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम अज्यूम करें कि इनकम अगर बढ़ जाती है तो इसकी वजह से कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, लेकिन कंज्यूमर सारे के सारे इंक्रीज्ड इनकम को खर्च नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो उसकी इनकम है वो कंजम्पशन और सेविंग में डिवाइड हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी चेंज इनकम है उसका वो कुछ पार्ट जो है वो सेव भी करेगा, इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 1 बट पॉजिटिव होती है। इस इक्वेशन में कंजम्पशन फंक्शन की जो इक्वेशन है इसके अंदर ये जो पॉजिटिव साइन है सेंटर में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंजम्पशन और इनकम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। जब भी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, और इनकम कम होने के साथ साथ कंजम्पशन भी कम हो जाता है। Further, it is assumed here that investment expenditures consist of autonomous investment. Then we can write the investment function as I is equals to I naught, जहाँ I naught autonomous investment को represent कर रहा है। एटोनमस इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इनकम पर डिपेंड नहीं करती, यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो इनकम के साथ साथ वेरी नहीं करती, मीनिंग दैट दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन इनकम। फॉर ईच एंड एवरी लेवल ऑफ इनकम एटोनमस इन्वेस्टमेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज वी कैन सी हियर। अगर इसको हम इस डायग्राम में देखें जहां एक्स एक्सिस पर हम इनकम रख लेते हैं और वाई एक्सिस पर इन्वेस्टमेंट, तो ये एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है ये ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कांस्टेंट रहती है। Further, it is assumed that saving is dependent on the level of income, यानी सेविंग इनकम का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि कैसा फंक्शन है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इनकम बढ़ती है तो सेविंग्स बढ़ जाती हैं, इनकम कम होने के साथ सेविंग कम हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि सेविंग इनकम का इंक्रीजिंग फंक्शन है। और सेविंग इक्वेशन को इक्वेशनल फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, S इज इक्वल्स टू माइनस एस नॉट प्लस एस वाई, जहां पर माइनस एस नॉट एटोनमस सेविंग्स को और इंटरसेप्ट ऑफ द सेविंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एस वाई यहाँ पर इंड्यूस सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल एस जो है यहाँ पर वो एमपीएस या स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ एस नॉट की वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन जीरो होती है, यानी ये नेगेटिव रहता है। इसका मतलब ये है, ये इंडिकेट करता है कि जब इनकम जीरो होती है तो लोग उधार लेकर खर्च करते हैं, यानी जीरो इनकम पर खर्च डिस सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से सेविंग फंक्शन का इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाता है। और
एक और बात जो यहाँ वो पे इम्पॉर्टेंट है नोट करनी है हमने, वो ये है कि ये ऑटोनमस सेविंग्स हमेशा ऑटोनमस कंजम्पशन की वैल्यू के बराबर होती हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि सेविंग्स की इक्वेशन में ये ऑटोनमस कंजम्पशन की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के साथ अपीयर हो जाती है, जो डिस सेविंग्स को रिप्रेजेंट करती है, जो ये शो कर रही है जो कंज्यूमर जीरो इनकम पर खर्च कर रहे हैं तो यही वैल्यू माइनस साइन के साथ सेविंग फंक्शन में अपीयर हो जाती है। प्लस साइन ये सेविंग फंक्शन में इंडिकेट कर रहा है कि सेविंग और इनकम के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इनकम ज़्यादा होती है तो सेविंग भी बढ़ जाती है, इनकम कम होने के साथ साथ सेविंग भी कम हो जाती है। स्मॉल एस की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है बट लेस देन 1। स्मॉल एस लेस देन 1 जो है वो इंडिकेट करता है कि जब इनकम चेंज होती है तो सेविंग्स भी चेंज होती हैं, लेकिन सेविंग में जो चेंज आ रहा है वो हमेशा इनकम के चेंज से कम रहता है। Trade global assets with superior trading conditions only at XM. We'll boost your account with over $5,000 in deposit bonuses. Plus, enjoy trading with low spreads, no commissions, and no rejections. Get the edge to make the most of every trade. Join XM today and unlock more opportunities to succeed. Further, the output side of the national income will be as Y is equals to consumption plus savings, जहाँ पर C जो है वो consumption को represent कर रहा है और S यहाँ पर savings को represent कर रहा है। आउटपुट साइड ऑफ द नेशनल इनकम को ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होती है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से प्रोड्यूस होती है। यही आउटपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होके उनकी अर्निंग्स बन जाती हैं। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ये अर्निंग्स मिलती हैं तो वो इसको कंजम्पशन और सेविंग में डिवाइड कर देते हैं। इस तरह ये आउटपुट साइड ऑफ द नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करती है। Here we will explain the basic thesis of the model. According to Keynes, equilibrium level of national income and employment is determined at a point where aggregate demand becomes equal to aggregate supply. As aggregate expenditure in the two-sector economy is the combination of both consumption and investment, while aggregate output is the composition of consumption and savings. Then by substituting these equations for aggregate demand and aggregate supply into the equality equation, then we get the equation as C plus I is equals to C plus S. यहाँ C से कैंसल आउट हो जाता है और ये इक्वेशन रिड्यूस होकर ऐसे लिखी जा सकती है I is equals to S, यानी इन्वेस्टमेंट is equals to savings. From these two equations, one can deduce that there are two approaches to present the equilibrium level of income and employment, that are aggregate demand and aggregate supply method and saving and investment method, जहाँ पर सेविंग जो है वो लीकेजेस को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि ये फर्दर जो है वो यानी चीज़ों को परचेज करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए हम इसको लीकेज कहते हैं। इन्वेस्टमेंट को इंजेक्शंस कहा जाता है क्योंकि ये नेशनल इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करती हैं और नेशनल इनकम को अफेक्ट करती हैं। जहाँ इसलिए हम इसको दूसरे जो है वो वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड जो है वो लीकेज और इंजेक्शन मेथड भी कहलाता है। Before going towards the determination of output and employment using these couple of approaches, first we will define and derive the aggregate demand and aggregate supply schedules. In a two-sector economy, aggregate demand consists of total demand for goods and services. Simply, we can define the aggregate demand as it composes of total expenditure of the economy. हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड वो नेशनल इनकम है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद अर्न करते हैं।
ये अर्निंग्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स पर खर्च कर देते हैं। Thus, on the one side, aggregate demand represents the total income earned, while on the other side, it represents total expenditure of the economy. Equationally, we can write it as Y is equals to C plus I. यानी एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल को डिराइव करने के लिए हमें कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को ऐड करना पड़ेगा। जैसा कि कंजम्पशन इनकम पर डिपेंड करता है और कंजम्पशन और इनकम के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और कंजम्पशन फंक्शन पॉजिटिव इंटरसेप्ट रखता है और केन्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो इन दोनों कर्व्स को ऐड करके हम एग्रीगेट डिमांड स्केड्यूल डिराइव कर सकते हैं। It is shown in the diagram. Here we can see that along with increase in national income, aggregate demand goes on to increase. We also see that at zero income, there are fixed consumption expenditure as well as fixed or autonomous investment. As shown here that the sum of C naught plus I naught is greater than 0. Here we would define and derive the aggregate supply schedule. Simply we can say that aggregate supply consists of total output of the economy. और हम कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई वो नेशनल इनकम है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं तो इसके बदले में इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को रिटर्न्स मिलते हैं। ये रिटर्न्स उनको वेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट की शक्ल में मिलते हैं। ये जो रिटर्न्स हैं अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अर्निंग्स बन जाती हैं। अब इन अर्निंग्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है इनका कुछ पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ पार्ट इसका सेव कर देते हैं। Thus, on the one side, aggregate supply represents the total output, while on the other side, aggregate supply consists of total factor payments. Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. Food Panda? Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. Ooh, ooh, Tamu. Ooh, ooh, Tamu. All of my wishes came true. Shop like a billionaire. Shop like a billionaire. Ooh, ooh, Tamu. Ooh, ooh, Tamu. Download the Temu app and shop like a billionaire. तो हम इसको इक्वेशनल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, y is equal to consumption plus savings। यानी एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल को डिराइव करने के लिए हमें कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन को ऐड करना पड़ेगा। जैसा कि कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन दोनों पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व हैं जो ये शो करते हैं कि कंजम्पशन और इनकम के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और सेविंग और इनकम के दरमियान भी पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। लेकिन कंजम्पशन फंक्शन का पॉजिटिव इंटरसेप्ट है लेकिन सेविंग फंक्शन जो है हैज ए नेगेटिव इंटरसेप्ट। जब हम इन दोनों कर्व्स को ऐड करते हैं तो ये पॉजिटिव कंजम्पशन जो वैल्यू है जीरो इनकम पर, ये नेगेटिव सेविंग के जो जीरो इनकम पर नेगेटिव सेविंग है इससे कैंसल आउट हो जाती हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज एग्जैक्टली बराबर होती हैं। तो ये दोनों टर्म्स जब आपस में एक दूसरे से कैंसल हो जाती हैं तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व हैज अ जीरो इंटरसेप्ट। यानी एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। As it is shown in the figure, where it is shown that as the level of produced goods and services increases, then the level of factors earning also increases, which will be split into consumption and savings.
अब हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई स्केड्यूल्स को यूटिलाइज करेंगे ताकि हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और आउटपुट को डिटरमिन कर सकें केन्सियन फ्रेमवर्क में। As according to Keynes, equilibrium level of national income in the two-sector economy will be determined when aggregate demand becomes equal to aggregate supply. वो पॉइंट जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाते हैं, ये पॉइंट इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट भी कहलाता है और इसी पॉइंट को केन्सियन क्रॉस 1 भी कहा जाता है, जहां इफेक्टिव डिमांड जो है वो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और नेशनल इनकम की इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। केन्स के अकॉर्डिंग अगर इफेक्टिव डिमांड ज्यादा हो तो ऐसी इकोनॉमी या ऐसी कंट्री में इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होती है। Here we have present the determination of equilibrium level of national income with the help of diagram. यहाँ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम ई पॉइंट पर डिटरमिन हुआ है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर हो गए हैं। ये इक्वालिटी OY2 लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर शो हो रही है डायग्राम में। यहाँ OY1 और OY3 इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, क्योंकि इन दोनों लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर नहीं है। जैसा कि OY1 पर अगर हम देखें तो यहाँ पे सिचुएशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व इज अबव देन दैट ऑफ द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। जब OY1 लेवल ऑफ आउटपुट पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो ये एक्सेस डिमांड क्रिएट करती है इकोनॉमी में। जब एक्सेस डिमांड क्रिएट होती है इकोनॉमी में तो गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। गुड्स की प्राइसेस बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फर्दर इन्वेस्टमेंट इनकरेज करती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ इनकम भी बढ़ती है और इनकम यहाँ पर बढ़कर OY1 से OY2 की तरफ मूव करेगी। अगेन OY3 भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि इस लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अबव देन दैट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड कर्व। यानी हम कह सकते हैं कि OY3 लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, यानी ये पॉइंट और ये वाला जो लेवल ऑफ इनकम है ये एक्सेस सप्लाई ऑफ द गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब इकोनॉमी में एक्सेस सप्लाई होती है, सरप्लस क्रिएट हो जाता है क्वांटिटी का, तो प्राइसेस कम हो जाती हैं। जब गुड्स की प्राइसेस फॉल करती हैं तो प्रोड्यूसर्स को लॉसेस फेस करना पड़ते हैं, जिसकी वजह से फर्दर इन्वेस्टमेंट डिस्करेज कर जाती है। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाती है और इनकम यहाँ पर कम होकर OY3 से OY2 की तरफ मूव करेगी। Thus, we find that it is OY2 level of income where aggregate demand is equal to the aggregate supply. The point E also represents the effective demand point because at this point, national income, the expenditures and the output of the economy have been equalized. Now we will explain the determination of national income mathematically and numerically. Here we will derive mathematically the equilibrium level of national income by using the aggregate demand and aggregate supply method. जैसा कि नेशनल इनकम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का कॉम्बिनेशन है और फर्दर कंजम्पशन फंक्शन केन्स के अकॉर्डिंगली एटोनमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन की कंपोजिशन है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन केन्स के मुताबिक एटोनमस इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो सी और आई फंक्शंस को जो है अगर हम एग्रीगेट डिमांड या नेशनल इनकम की इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास जो है इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस सी वाई प्लस आई नॉट। इस इक्वेशन में 2 टर्म्स y के साथ अपेयर हो रही हैं, एक y है और दूसरी cy है। तो हम दोनों y वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेते हैं, तो हम cy को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y माइनस cy इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस आई नॉट।
अब हम यहाँ पर y को अगर इस जो लेफ्ट हैंड साइड टर्म है इसमें से y दो है वो कॉमन ले लें तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं y इंटू 1 माइनस सी इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस आई नॉट। तो अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करने के लिए 1 माइनस सी को बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं। जब हम 1 माइनस सी को बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइड करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल्स टू सी नॉट प्लस आई नॉट ओवर 1 माइनस सी। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की मैथमेटिकल फॉर्म है जो कि बराबर है autonomous consumption plus autonomous investment dividing by MPS और 1 minus MPC। यहाँ पर जो स्मॉल c है वो MPC को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि कलेक्टिवली 1 माइनस c जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो MPS को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इसी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को न्यूमेरिकली डेराइव करेंगे। यहाँ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को न्यूमेरिकली डेराइव करने के लिए कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन की वैल्यूज गिवन है। जैसा कि यहाँ C हमारे पास है 40 प्लस 0.6y और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 80 गिवन है। तो अब हम नेशनल इनकम की इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो नेशनल इनकम की इक्वेशन हमारे पास ऐसे आ जाएगी y is equals to 40 plus 0.6y plus 80। यहाँ पर 0.6y के साथ अपेयर हो रहा है तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी y माइनस 0.6y इज इक्वल्स टू 40 प्लस 80। यहाँ y को अगर हम कॉमन लें तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y इंटू 1 माइनस 0.6 इज इक्वल्स टू 120। ये 120 40 और इस 80 को ऐड करने के बाद आ गया है 1 में से। अब हम 0.6 को अगर माइनस कर दें तो आंसर आ जाएगा 0.4। 0.4 को इक्वेशन के दोनों साइड पर डिवाइड करने के बाद नेशनल इनकम की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 300। अब हम इस y की वैल्यू को कंजम्पशन फंक्शन में पुट करते हैं ताकि हम कंजम्पशन की वैल्यू को डिराइव कर सकें। जब हम इस y की वैल्यू 300 को कंजम्पशन फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास t की वैल्यू आ जाती है 220। अब अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमने जो नेशनल इनकम की वैल्यू डिराइव की है वो सही है या नहीं है तो हम नेशनल इनकम के इक्वेशन में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं कि नेशनल इनकम की वही वैल्यू आती है जो हमने डिराइव की है या डिफरेंट आती है। तो इसके लिए जब हम C को 220 और I को 80 पुट करते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम 300 के बराबर आ जाती है, जो अभी हमने जो है वो विद द हेल्प ऑफ इक्वालिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डिराइव की। अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम के सेकंड मेथड की तरफ जाने से पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को यूटिलाइज करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को डिराइव करने के लिए। जैसा कि केन्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट इनकम से अफेक्ट नहीं होती, यानी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट के बराबर है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट। इसको हम डायग्राम की शक्ल में देख सकते हैं कि आई नॉट एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है जो ये इंडिकेट कर रही है कि इनकम जीरो हो, इनकम इंक्रीज हो या इनकम डिक्रीज हो जाए, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता बल्कि ये कांस्टेंट रहती है। फर्दर केन्स ने अज्यूम किया हुआ है कि सेविंग इनकम पर डिपेंड करती है। इनकम का कैसा फंक्शन है? सेविंग इनकम का इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेविंग को फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं सेविंग्स इज इक्वल टू माइनस एस नॉट प्लस एस वाई। इस सेविंग फंक्शन को हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सेविंग फंक्शन नेगेटिव इंटरसेप्ट के साथ है, पॉजिटिवली स्लोप कर्व है। अब हम इन दोनों स्केजुअल की मदद से इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिराइव करेंगे। According to Keynes, the equilibrium level of national income in a two-sector economy will also be determined where saving is equal to investment. Such equality of saving and investment is known as Keynesian cross 2.
इट इज शोन इन द फिगर। यहाँ पर ई पॉइंट सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी को शो कर रहा है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम OY2 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि OY2 के अलावा जो भी लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, जैसे कि OY1 और OY3, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं है। जैसा कि OY1 पर इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है, दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अगेन OY3 भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। This would result in decreasing the level of national income. Thus, we find that OY2 is the equilibrium level of national income. यहाँ हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड को यूज करते हुए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। जैसा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वहाँ डिटरमिन होता है जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाते हैं। अब अगर इस इक्वेशन में हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -S0 प्लस SY इज इक्वल टू I0। इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करने के लिए हम -S0 को राइट साइड पर ले जाते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी SY इज इक्वल्स टू I0 प्लस S0। y के साथ ये जो स्मॉल s अपेयर हो रहा है, इसको हम इक्वेशन के दोनों साइड पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास नेशनल इनकम आ जाएगी y इज इक्वल्स टू I0 प्लस S0 ओवर स्मॉल s। यहाँ y जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कॉम्बिनेशन है एटोनमस इन्वेस्टमेंट एंड एटोनमस सेविंग्स का। और ये जो एटोनमस इन्वेस्टमेंट और एटोनमस सेविंग का कॉम्बिनेशन है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं MPS से। यहाँ स्मॉल s जो है वो MPS को रिप्रेजेंट कर रहा है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को या स्लोप ऑफ द सेविंग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये y इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है टू सेक्टर इकोनॉमी में। अब हम इसी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम को न्यूमेरिकली डिराइव करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू। यहाँ नेशनल इनकम को सेविंग और इन्वेस्टमेंट मेथड से न्यूमेरिकली डिराइव करने के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन की वैल्यूज गिवन है। इन वैल्यूज को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -40 प्लस 0.4y इज इक्वल्स टू 80। y के लिए सॉल्व करें अगर इस इक्वेशन को तो -40 को राइट साइड पर ले जाएंगे, जहां जाकर ये +40 हो जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 0.4y इज इक्वल्स टू 80 प्लस 40। 80 और 40 को ऐड करें तो ये 120 बन जाएगा। अब हम 0.4 को इक्वेशन के दोनों साइड पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 120 डिवाइडिंग बाय 0.4 और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की वैल्यू डिराइव हो जाएगी 300। अब इस y की वैल्यू को अगर हम सेविंग फंक्शन में पुट करें तो सेविंग की वैल्यू 80 आ जाएगी, जो इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो इस एग्जाम्पल में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम की वैल्यू 300 के बराबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।